Hello and a very warm welcome. Thank you, Komal and Archana, for joining in. Today we are reading about workaholism in Is a Life Lie from this amazing book, The Courage to Be This Life. Almost khatam hone wali hai. Look at this. So let me very quickly start sharing the screen because I'm also interested in what kind of a life lie is this. बहुत अच्छी बुक है, ध्यान से पढ़ने वाली बुक है. सच्ची बताऊं तो रिलेशनशिप ऑल सॉर्टेड इफ यू रीड दिस बुक अच्छे से. I'll just order. I feel मतलब जो chapters नहीं हुए ना proper. So the youth says, all right, I really readily admit that I do not have the courage to take steps towards self acceptance or confidence in others. But is this really the fault only of the I? Isn't it actually a problem brought about by other people who accuse me unreasonably and attack me? Oh my God. So the philosopher says, to be sure, not everyone in the world is a good and virtuous person. One goes through any number of unpleasant experiences in one's interpersonal relations. But there is something one must not get wrong at this juncture. The fact that in every instance, it is that person who attacks you who has the problem. And it is certainly not the case that everyone is bad. People with neurotic lifestyles tend to sprinkle their speech with such words as everyone and always and everything. Everyone hates me, they will so say. Or it's always me who takes a loss. Or everything is wrong. If you think you might be in a habit of using such generalizing statements, you should be careful of. There are people, हो सकता है हर कोई अच्छा ना भी हो सकता है आपके ऊपर जुल्म कर रहे हों, पर द प्रॉब्लम इज नॉट एवरीबडी. वी कैन नॉट जनरलाइज इट. इट इज दैट पर्सन ओनली. और मे बी दैट पर्सन भी नहीं है. समथिंग इनसाइड दैट पर्सन इज रॉन्ग. पीपल आर नेवर रॉन्ग. द एक्शन दे डू कैन बी रॉन्ग. यूथ. And what mistake we do or I did like last week itself, I was like, why that person is doing that or speaking this? We tend to maybe something his energy is different. He's in a different atmosphere. Maybe even if we are coming from the same house. Same house means we are coming from relatives' place or something. Still, who knows what he's feeling inside his head, right? I will feel why he is saying this and getting annoyed by my sentence. I am getting annoyed because why he is getting annoyed. So that is we feel that I spoke a normal thing. Why he's feeling annoyed? We all do this mistakes with पता है brother, with husband and हम all. ये नहीं समझते कोमल कि हमारी वजह से कोई अनॉय नहीं हो रहा है. इट इज समथिंग इनसाइड ऑफ देम विच इज ऑलरेडी अनोइंग देम, विच इज कमिंग आउट, यू बीइंग अ रीजन ऑफ डूइंग सम छोटा सा ट्रिगर. And I was messing myself one day, 2 day, like, oh, what did you say wrong? How was you wrong? This line particularly which you said, something in already there, which can create that spark I just gave, and that triggered all the things. And कितनी he बार ये spoke something एग्जांपल which is दिया है, giving me. मैंने कितनी बार ये एग्जांपल दिया है इसी बुक रीडिंग सेशन में कि मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को कुछ बोल दिया, तुझको तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं है. ठीक है. रूम में गई डॉटर इन लॉ, बच्चे को देखा दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख रहा है, घुमा के चाटा मारती है कि तेरे को कुछ सिखाया नहीं है क्या. सेम टू सेम वर्ड्स वो उसको जाके बोल देती है. अब वो बच्चा तो हर रोज ही ये काम करता है. माँ बाप भी आप ही हो, उसके सिखाने Exactly. वाले भी आप ही हो. अभी अपने आप को ही गाली दे रहे हो क्या. हाँ कि सिखाया नहीं है, what is this? You must have seen that maybe, or just example, it can be another anything. I know, I have faced such instances wherein I was, I Hmm. there was some kind of anger.
with Hmm. maybe my mother-in-law would have said something, or my jithani would have said something, or maybe my husband would have said something. I would come to my bedroom when I'm putting my kids to bed. If they are not sleeping, I would spank at their bums. ठटक ठटक ठटक, सोते हो कि नहीं सोते हो, जल्दी से सो जाओ, मुझको बड़े सारे काम करने हैं. हाँ, मुझे काम करना है, सो जाओ फटाफट। राइट। एंड दे स्टिल लाफ एट इट, कि आपको लगता है बम के ऊपर किसी के मारने से उनको दर्द होती है. व्हाई यू यूज्ड टू हिट अस? हाँ, दे वुड लाफ एट कि दर्द नहीं होता। बम पे है, बम पे किसको दर्द होती है? आप थप्पड़ मारते थे, हमारे को कुछ नहीं होता था, बट हम चलो आंखें बंद कर लेते थे कि एक्टिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, और बाय चांस एक्टिंग करते करते हम सो भी जाते थे. और ये है ना कि मॉम को तो पता है ना कि अच्छा पेन नहीं हो रहा, और सॉफ्ट ही तो करेगी मॉम, नहीं, वुड नॉट। मम्मी तो बेचारी अपने ही हर्ट में थी, हाँ, उन्होंने कुछ बोल दिया, अभी वो. subconsciously you know you don't want to pain them, so हम्म, you are just doing it little, है ना, obviously you are not in too much anger that you will just do anything and everything. मतलब mothers used to do, we know so many stories of that also. Many people would take out on children, yeah. And my sister herself also, like she shared, mama आप ऐसे गुस्सा निकाल देते थे कि तेरे कुछ सैंडल नहीं, somebody was waiting outside and तेरे को सैंडल चाहिए, why because somebody is waiting outside and a child will want कि अभी चाहिए कुछ, तो how can mom create it out of thin air? So then she was like, can't you go, they're waiting for you, but समझाना पड़ेगा आपको। वो फिर दीदी बोले आपने ना हिट कर दिया था, तो शी रिमेम्बर्ड दैट सीन। तो फिर I still बाद। remember I was pregnant, 8 or 9 months pregnant. It was very difficult for me to, climb the stairs. I was pregnant with my third baby. Yeah. And जो छोटी बीच वाली डॉटर थी, शी वॉज 2 years old आई थिंक एट दैट टाइम. 2.5 years का डिफरेंस है, तो 2.5 की होगी, ऑलमोस्ट लास्ट भी टाइम ही चल रहा था. एंड शी वॉज लाइक, मुझे गोदी उठाओ, मुझे गोदी उठाओ, मम्मी ही उठाएगी, पापा नहीं उठाएंगे. एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक, मैं गोदी उठाता हूँ, मैं गोदी उठाता हूँ. एंड देन शी वॉज सो फ्यूरियस कि नहीं मम्मी उठाएगी, नहीं. तो माई हम्म। हस्बैंड लाइक डिड दिस टू हर, कि चुप, मम्मी नहीं उठा सकती है, मैं उठाऊंगा. एंड हम्म। आज तक डेट टिल डेट शी कीप्स ऑन टेलिंग. मैं ना बहुत छोटी थी, पापा ने ना मेरे को थप्पड़ मारा था. पापा ने ओके। आज तक बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया. मैं हाँ, कभी मतलब उस कभी टाइम पापा कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, चाइल्ड समझ जा तू, बस मम्मा नहीं उठा पाएंगी अभी, तो ही जस्ट डिड लाइक, है ना, जो भी किया, और हाँ, पापा ने थप्पड़ लगाया। पापा ने मुझे मारा था कोविड टाइम्स में. माय यंगेस्ट वन यूज टू स्विच ऑन द लैपटॉप एंड यूज टू स्लीप इन फ्रंट ऑफ इट. एक दिन टेस्ट था. I came from downstairs. I was calling my daughter so that when she picks up the call, I will check with her whether she's doing the writing the exam or not. मेरी ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, सेकंड फ्लोर पे मैं आती हूँ, आई सी, अरे ये सो रही है. मैं सेकंड फ्लोर से 15 कॉल, ग्राउंड फ्लोर से 15 कॉल चुक कर चुकी हूँ, तूने अभी तक फोन नहीं हुआ है, खट्टाक. व्हाट? कि शी उठे नहीं स्टिल हो, रिमेम्बर्स. कि उठे नहीं हो आप, कि कि मैं एग्जाम तो, का टाइम है, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, कि पढ़ाई कर लो। और एग्जाम का टाइम है, इट ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, एंड यू आर ओ, स्लीप. ओके, आ अच्छा, दैट टाइमिंग, एग्जाम टाइम में सो रहे हो। हाँ, नॉट टू स्टडी बट टू गिव एग्जाम ओनली। Exactly, she was writing exam and then she still tells me, आप ना, आपसे मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप तो थप्पड़ मार सकते हो हे मुझको. भगवान। मैंने कहा वाह वाह, एग्जाम के टाइम पे तुम सो रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं तुम्हारे को लवली लवली डोज बहुत राइट। किस करूंगी, गुड मॉर्निंग बेटा. वो एंड इतना सभी स्ट्रेस मत निकाल देना बच्चों पर। नहीं, और ट्रिगर क्या था, मैं किचन में इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, तुमको ओ, फोन कर रही हूँ, मेरे को पीछे से मेरी मदर इन लॉ अपनी बेटी से बात कर रही है, कुछ बोल रही है, आई एम लिस्टिंग टू दैट एज वेल, एंड देन यू आर नॉट अवेक. ट्रिगर वहां से यहाँ पे. तो यू आर स्टिल रियलाइजिंग एंड फाइंडिंग द ट्रिगर्स, बट जिनको नहीं नॉलेज, माय पेरेंट्स दे विल नॉट फाइंड ट्रिगर्स, दे विल से मिस्टेक तो तुम्हारा ही है ना, तुम बेडशीट कब बोलने आई थी। सो आई वाज लाइक व्हाट, मतलब बेडशीट, बट व्हाट अबाउट योर ट्रिगर्स, कांट यू स्पीक सॉफ्टली कि कोमल ऐसे करते हैं, पहले ना किचन कर लेते हैं फिर बेडशीट कर लेंगे, आई वांटेड दिस। मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसे कह सकते थे, फिर मैं हर्ट ना होती कि यू आर सेइंग नहीं बिछाना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू चेंज इट। सो आई वाज लाइक व्हाट, चेंज क्यों नहीं करना, मतलब करना है। आई वाज लाइक कि लेट मी डू इट, समथिंग्स कमिंग, नो नो आंटी आ रही है, शी वाज फीलिंग लाइक एंग्शियस। आई वाज लाइक एंग्शियस किस बात का, शी विल कम एट 2 PM, व्हाई आर यू एंग्शियस, आई वांट टू आस्क हर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्शियस, तो उस बात में ट्रबल।
another person is getting anxious, Komal is getting matlab, falling in this drama. I am calling it drama because yeah, you don't know how to tackle that. Exactly. Those things happen. We have to still keep on learning how to maybe draw boundaries or keep us outside all these things. मेरी डॉटर मेरे को बताने आई है आपने थप्पड़ मारा था ऐसे करके, फिर वो बेड के साथ और गिर गई थी, सो गई थी। Now how she knows that वो अभी आई है वहां से, ऊपर से आई है ना, तो मेरा रूम साथ में से पास होते होके आगे जाती है वो, नेक्स्ट रूम से। okay, she heard that you were talking about it. नहीं, तेरे को नहीं मारा था, नूर को मारा था। ओके, लेट्स गो हेड। Youth. Well, that does sound familiar, rather familiar. Philosopher. In Adlerian psychology, we think of this as a way of living that is lacking of harmony in life. It is a way of living in which one sees only a part of thing but judge the whole. Do you understand that? एक चीज को देख के, एक एक्शन किसी का देख के हमने उस पूरे इंसान को गलत कर दिया, हमने पूरी जनरेशन को गलत कर दिया, हमने तो कह दिया सारे आदमी ही ऐसे होते हैं। Exactly. And because we are not able to solve that communication, which happened on Saturday, suppose with my brother, and still I carry till Sunday, next day, and I want to tell him, oh, why you were speaking like this? Or I can let it go in my own brain. Okay, he said maybe he was pissed off by some atmosphere at a maternal, like my grandmother's home or something. We can think another ways now. Maybe he had some work, he spoke, or he did not understand my concept, right? His logic. But I'll be like, no, no, he's speaking against me, and I need to communicate with him. I need to make him understand. But how to call him? Maybe he will not talk. So all this story will keep on going because my communication is pending. What हम्म। I will feel, my communication is pending. And Komal wants, maybe I love to explain, or I would be like, things should be sorted because of that desire to get things sorted. Things happen. So, what do you think? We should not try to get things sorted or try to do it So, softly. according to my understanding of life, when the emotions are high, Hmm. कुछ नहीं करना है, शांत हो जाना है। Okay. When the emotions are high, logic is always down. Even if it is taking 2 days, 1 day, or 3 days. जब सब शांत हो जाए तब आराम से बात कर लो कि Right. आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, हाउ Hmm. कैन वी इम्प्रूव ऑन दिस। And maybe our brain will tell, our mind will tell what is the next steps to be taken, है ना? But you are saying maybe till the time emotions are high, you can take a break यस। in trying to resolve things. Hmm. क्योंकि हर चीज को रिजॉल्व वैसे भी नहीं करना। रीजन बताती हूँ। जब आप सो मेरे सामने से कोई कार निकल रही है, यूर ऑन म्यूट। मेरे सामने से कोई कार निकल रही है, अगर मैं उसको पकड़ के उसके पीछे पड़ी जाऊंगी, उसी को देखती रहूंगी, तो हाउ एम आई गोइंग टू लीड द लाइफ अहेड, राइट? उस Right. होने पता है क्या वाला है, you will cling on that emotion, you will cling on to that instance, I mean, and you will miss out the entire journey that is going to be beautiful. You are saying emotion को car है ना? You're using that analogy that car is passing. So emotion is just passing, Let it and pass. you are मे trying बी to 2 दिन के बाद bring. आपको उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। मे बी अगर आप चुप रहते हो तो सामने वाला खुद रियलाइज कर ले कि उसकी गलती थी, उसने वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ही माइट कम टू यू एंड से यार थोड़ा सा उस दिन गलत हो गया But था। what happened is next day we reacted badly. Then maybe that's why we want to apologize, maybe, है ना? वहां पे हुआ क्या, नेक्स्ट आई कैरी टिल नेक्स्ट डे, और आपने पहले ही बोला लॉजिक फेल हो चुका होता है इमोशंस में। तब आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम माय मॉम, आई एम टेकिंग इट आउट ऑन मॉम। हम जैसे आप कह रहे हो कि ब्रदर से हुआ, देन आई एम टेकिंग इट आउट ऑन समवेयर एल्स कि ओके ओके देन दिस इज माय प्रॉब्लम, सॉल्व इट इमीडिएटली। सो व्हाट इज लाइक, मॉम टोल्ड ब्रदर when call came that this is happening at home, some mess is happening or whatever. So yeah, वही आप पहले पहले ही बोल रहे हो कि लॉजिक जब फेल हो चुके, ब्रेक्स लगा या ओवर चल रहा है,
it is like fail हो चुका है, or you're using too much logic, emotions are too high, you have to take a break or you have to sort it out somewhere. But हमारा head या ego इतनी strong होती है, हम उसी टाइम कहते हैं अभी resolve करेंगे, अभी बोलेंगे, अभी अभी हमें That is solution not चाहिए। reaction. हाँ। That is not response ever. If you हम्म। want to bring out a response, pause. हम्म। Then later we will understand that things are automatically solved, or maybe he went very smoothly. I could have let him go कि हाँ flight पकड़ चुका है, जा चुका है। What is important कि was that कि yesterday वाला पकड़ के रखो और smooth जा चुके हो। मे बी नेक्स्ट वो आराम से किसी टाइम भी आगे जाके बात कर सकते हो, अरे मैं तो वो ना ऐसे बोल रही थी, अपने बेनिफिट की बात कर रही थी हम दोनों के, कुछ वी कैन लेटर ऑन टॉक अबाउट दैट थिंग इफ नहीं ही तो इज जब आप विलिंग। किसी के सामने बहस करने शुरू हो जाते हो तो हर कोई डिफेंसिव हो जाता है, तो वो हम्म। आपका तो पक्ष देखेगा ही नहीं ना. दैट पर्सन विल नॉट सी व्हाट इज राइट दैट यू आर सेइंग. दैट पर्सन विल गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट टू प्रूव दैट कोमल इज रॉन्ग एनी हाउ. Because we are speaking in, you are saying in argument tone. I think you're saying that, no? कोई भी, हम्म। जहां पे भी कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो. हम्म। तब उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं आप रॉन्ग हो, क्योंकि कंफ्लिक्टिंग वे में उस मेरे टॉपिक चल रहा बच्चे है। मुझसे इतने छोटे, येट आई नेवर पास ऑन एनी स्टेटमेंट दैट गोज कंफ्लिक्टिंग. क्योंकि द मोमेंट आई विल से समथिंग कंफ्लिक्टिंग दैट डज नॉट align with what they are doing or they are wanting, they will defend, they will close themselves. प्रॉब्लम ये हुआ ना कि कन्फ्लिक्टिंग उन्होंने बोला, स्टार्टिंग उधर से हुई। मैंने नॉर्मल बात रखी कि ये एक हाउस रेंट पे कर देते थोड़ा सा, लाइक समथिंग। सो टॉपिक वाज लाइक हाँ, मॉम डैड आर रेडी, लेट अस गिव वन रूम ऑन रेंट, बिकॉज ही आल्सो थिंक्स व्हाई थ्री पीपल विल वांट टू हाउसेस, है ना, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज he also wants, otherwise give the new house on, I was just keeping the topic. He was like what, and maybe he did not want old house, he can give your opinion, but he started, okay, I'll take parents to Hyderabad. Oh, because they have to stay with you for because your issues. So my triggers, because okay, I'm keeping parents something. Explain the whole thing, right? So, so I will do this. Then okay, then stop talking. Then don't discuss the topic. Okay, I'm just reacting, but that will come like this, that where is my brother, where is the support, where is not understanding something is important, husband thing is important, maybe she is dealing with something, and why can't she keep parents, I am taking them to Hyderabad. हर I'm कोई like what? हर कोई अपने नजरिए से देखता है जिंदगी को. हम्म। पर कोमल, कोमल की मैरिड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ। और योर और हस्बैंड, उसको उसको बस एक हैदराबाद ले जाता हूँ नहीं तो, और तुम्हारे कारण हैदराबाद नहीं जा पा रहे, और तुम हैदराबाद आ नहीं सकती हो, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी प्राइवेट लाइफ है, यू कांट बी देयर। लास्ट टाइम ही टोल्ड मी दिस कि आई कैन कीप पेरेंट्स बट यू हैव टू मेक योर इंडिपेंडेंट लाइफ, देन आई वाज लाइक हु इज हेल्पिंग मी, आई एम हेल्पलेस, कोमल सेज स्टोरी। नॉट हेल्पलेस. हाँ। मतलब मीनिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग मीनिंग्स क्या क्या निकल जाते हैं स्टोरी, ओ देन आई एम हेल्पलेस, आई डोंट हैव एनीवन, नोबडी इज हेल्पिंग, फैमिली डजंट हेल्प मी, देन देयर इज दैट। है ना, एनीवे। फिर फैमिली के साथ डाइवोर्स हो जाएगा. रोज हो जाए, रोज ही हो रहा है। चेक ऑन योरसेल्फ. हम्म। Philosopher says in the teaching of Judaism, one क्या है, finds the following antidote. If there are 10 people, one will be someone who criticizes you no matter what you do. This person will come to dislike you and you will not learn to like him either. Then there will be two other who accept everything about you and whom you accept too, and you will become close friends with them. The remaining seven people will be neither of these types. Right. Now, do you focus on the one person who dislikes you? Do you pay more attention to the two people who love you? Or would you focus on the crowd, the other seven? A person who is lacking in harmony of life will see only the one person who dislikes and will make a judgment of the world from that. Damn. How many word catch up with this? Hmm. Youth, intriguing philosophers. Some time ago, I participated in a workshop for stammer sufferers and their families. Do you know anyone who has a stammer? Youth, yes. There was a student at school I went.
who stuttered. That must be hard to deal with, both of the persons who has it and for the family too. Philosopher. Why is stammering hard to deal with? The view in Adlerian psychology is that people who suffer from stammering are concerned only about their own way of speaking, and they have feeling of inferiority and see their lives as unbearably hard, and they become too self-conscious as a result and start tripping over their words more and more. Youth, they're concerned about their own way of speaking, राइट है ना, कि कोई स्टैमर कर रहा होता है तो वो कम भी बोलता है, और जब वो बोलता है क्योंकि वो इतना ज्यादा कंसर्न, उसको फुल फोकस इस चीज पे होता है कि मैं स्टैमर ना करूं, इसलिए वो हम्म, स्टैमर एक्चुअली और ज्यादा करता है. और ज्यादा कर रहे हैं मतलब ही इज सो कॉन्शियस philosopher is saying is overly conscious about his speaking so यस. but sometimes when I'm getting conscious we have to get that much conscious if we speak nicely we cannot comment on anyone but normally yeah कॉन्शियस नहीं होना है, माइंडफुल होना. mindful huh because when I'm using word I'm always even everybody we all think and speak we are not uttering anything some we are allowing ourselves plus we are being mindful also तो जब that लड़ाई is कर रहे होते हैं तो वी आर नॉट माइंडफुल, वी आर नॉट कॉन्शियस. जब क्या करे लड़ाई हाँ that is very true then also if we be mindful I tried today I tried mom was getting negative that something like my it was her turn to whatever say I was like okay okay I was Karishma हाँ जी हाँ जी I was like बनाओ बनाओ रेल मैंने मजा लिया हाँ, ठीक चलो करो ओके ओके तो वो बचपन में ना एक एंड शी वाज लाइक जितना प्यार करती हूँ ना उतनी दुश्मन हूँ मैं तेरी चल मैं लो करो करो लपेट रही हूँ ठीक है नहीं कल नहीं, हक करने आ जाएंगी सुबह बचपन में एक वो होता था कोई ना, फालतू ऐसे फालतू की जोक्स, मतलब ऐसे ही, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ तो बोलता था, तो वी यूज्ड टू से लपेटो, हाँ, लपेटो. तो वो फैन चल रहा है, फैन लपेट ही रहा है, बोलो चलो चलो जो हाँ, बोलना बोलो. मैं वेट कर रही थी मैं कहा मेरी टर्न आएगी चलो बोलो मैंने कहा नहीं देनी टर्न तो चलो करो तेरे तो मैं बताती हूँ ये वो बट दिस है ना तुम ये मैं तुम मेरे को बोलोगी नहीं घर गंदा रखती हो तुम मेरे को ये नहीं बोलोगी मम्मा ऑल्सो वांटेड हर पॉइंट्स मैंने कहा ठीक है अब तो सुन ले तेरी सुनने की बारी है बिकॉज आई टोल्ड यू ना आई लव क्लीन हाउस एंड दे मतलब उनको ट्रिगर हुआ था कि ये हमें तंग करती रहती है कि साफ करो उनको जो भी प्रॉब्लम होता होगा कि अभी जैसे बेडशीट की बात आया था आई वांटेड इट टू बी चेंज एंड दे वर लाइक नहीं नहीं ठीक है बिकॉज हर फ्रेंड वाज कमिंग अराउंड मे तो बी सारा था तो दे वांटेड कि जल्दी से काम निपट के खत्म हो, एंड हाँ यू, उनको एक नहीं किसी ने आना है, मेरे को तो बेडशीट चेंज करनी है. हाँ दोनों अपने वे में उनको है कि फ्रेंड आ जाएंगी सब्जी नहीं बनी हुई सब्जी सब उनकी एंग्जाइटी अलग थी सब्जी बनी होगी तो कोमल उनकी हेल्प कर पाएगी आंटी के साथ बैठ के आंटी को गिफ्ट ऑर्डर करना था तो शी वॉज लाइक कोमल विल बी अवेलेबल इफ यू मेक सब्जी और सब्जी कोमल क्यों बनाएगी क्योंकि क्योंकि लोग कहते हैं हाँ अब आपको सारा समझ आ रहा है शी इज ऑल्सो राइट कि उनको लग रहा है तू देर लगाएगी तो पहले सब्जी बना ले yes. बेडशीट कैन हैपन लेटर बट वो मुझे तो आराम से बोल लो या कुछ ऐसे समझा दो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे ब्रेन तो को है कि नहीं अगर नहीं अगर अगर कोमल को कोई बदतमीजी से बोलेगा, देन व्हाट, नाउ व्हाट? तो तभी हुआ ना प्रॉब्लम तो व्हाट डज कोमल नीड टू लर्न? मतलब उनका मैसेज सुनना पड़ेगा इट मीन्स कि जो वो कह रहे हैं अंडरस्टैंड कि वो अपनी एंजाइटी में है, हाँ जिसकी वजह से वो चिल्ला रही है, उनको लग रहा है कि व्हेन शी स्पीक्स लाउडली एंड इन हाँ। स्पीड तो उनका काम जल्दी होके खत्म हो जाएगा. और मैं एंग्शियस इसलिए हो रही हूँ कि आप एंग्शियस क्यों हो रही है कि आपको क्या है आंटी दैट आएंगी योर आंटी टॉप, इज दैट मैंने योर आंटी को टॉप? मैंने आंटी को फोन कर दिया आंटी सब्जी बनाऊंगी आपको बुरा लगेगा क्या सब्जी बना के काम कर देगी कोमल हेल्प कर देगी मम्मा को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि सब्जी बना के भी हेल्प हो सकती है मुझे आपको हरी किस बात की आंटी कहती हाँ हाँ, मेरे को तो अच्छा लगेगा बेटी सब्जी बना रही है कर देगी मुझे आप आराम से करो सब कुछ मैंने आपको बोला था मुझे आराम वाला गेन दैट पैटर्न कि आराम से डोंट फोर्स एंड बी एंग्शियस अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ सुबह ये कहेंगे जल्दी जल्दी नहाओ हम क्लब जा रहे हैं मैंने कहा ओके आप जाओ मैं थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे आई हैड टू डू दैट कि 9:15 दे विल बी लाइक सुपर जा रहे हैं हम वी आर गोइंग दे वेंट दे लेफ्ट मी फिर आए हैं तो ये दिस थिंग हैपेंड सब्जी लाइक व्हाट बट अगर कोमल सोचती तो मे बी वो मम्मी पापा जब गए हुए थे शी कुड हैव कुक्ड समथिंग हाँ अराउंड.
से एक That is, आती। yeah, that is maybe the expectations which I do not know or think about, जो वो बोल नहीं पाते हैं, वही आप दिखा रहे हो कि आप पहले ही कर दोगे तो शायद उनको और हैप्पीनेस मिलना शुरू होगा और चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू होगा। that surprises everybody likes। एंड आई हैव आल्सो फेल्ट कि लोग ना, आप बोलते रहते हो, वो कम चाहते हैं, आपका काम ज्यादा चाहते हैं अब। आई डोंट नो अबाउट कलयुग और सतयुग, बट अभी हम मम्मा और मैं यही बात कर रहे थे, इवन आफ्टर सो मच कन्फ्लिक्ट दिन में जो कर रहे हैं, रात को हम बात करें मतलब किचन में आराम से अपनी फिलोसफी, मम्मी आपका आजकल लगता है लेबर वर्क ज्यादा चाहती है दुनिया, कि आप काम करो बात ना करो, उनको अच्छा लगेगा काम क्या हुआ है। दैट इज व्हाट इज लॉजिक नहीं चलेगा, फिलोसफिकल बातें कहीं नहीं चलेंगी। uh, मतलब या दे विल लव कि खाना रेडी है। That's the harsh reality, but yes। या दैट बातों से नोबडी विल बी हैप्पी, जितना मर्जी आप कर दो। मीठा बोल के क्या कर लोगे ना। मीठा तो सही। बोलना ही है, पर काम पहले चाहिए। काम पक्का, कोई काम पक्का, कर पक्का चाहिए। खाना देखो, पक्का। देखो कोई काम कर देगा और थोड़ा सा कड़वा बोलेगा, वो फिर टॉलरेबल। एंड हैव यू काम ही सीन, नहीं करे और कड़वा बोले, उसको तो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। इवन जो मेड्स काम होती नहीं हैं। करता और मीठा बोलता है, उसको कहते हैं चापलूस। काम करती नहीं है और चीची हम करती है। मीठा काम कर भी दिया, मीठा भी बोल रहे, डबल बोनस। डबल बोनस। हम्म। और काम नहीं किया और बोल भी गए, वो डबल नेगेटिव ऑब्वियसली। सुपर। ऑल राइट। तो फिलोसफर सेज, सम टाइम अगो आई पार्टिसिपेटेड इन अ वर्कशॉप, ये तो हो गया था। Youth said they are concerned only about their own way of speaking. Philosopher says that's right. There are not many people who will laugh at and make fun of someone who, when he trips over his words now and then. To use the example I just mentioned, it would probably be no more than 1% in 10 at the most. In any case, with the sort of foolish person who would take such an attitude, it is best to simply sever the relationship. But if one is lacking in harmony of life, one will focus only on that person and end up thinking everyone is laughing at me. हमारे साथ कई बार होता है कि हम ना कहीं स्लिप हो जाते हैं, है ना। कहीं पे ट्रिप हो गए, थोड़ा सा गिर गए, हम उठ के सबसे पहले देखते हैं कौन कौन हंसा। हाँ ये नहीं देखते एग्जैक्टली। कि सम पीपल आल्सो कम टू हैंड होल्ड यू, कि अरे मैं डेफिनेटली। हेल्प कर देता हूँ। और नॉर्मली भी हंस रहे होते हैं, मुझे लगेगा हमारे ऊपर तो नहीं हंस रहे हैं, बट देन वी कोई आपस रियलाइज। में दो लोग बात कर रहे होंगे तब भी यू विल सी कि अच्छा ये ना मेरे पे हंस रहा था, मैं गिरी थी। एग्जैक्टली, हाँ टोटल। तो यूथ सेज, बट दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। फिलोसोफर, I have a reading group that meets on a regular basis, and one of the participants has a stammer. It comes out sometimes when it's his turn to read, but not a single person there is a sort who would laugh at him for that. Everyone just sits quietly and waits in a quite natural way for the next word to come out. I am sure this is not a phenomenon that is isolated to my reading group. When या one's interpersonal relationships do not go well, it cannot be blamed on a stammer or a fear of blushing or anything of a sort. Even though the problem is really that one has not attained self acceptance or confidence in others or contribution to others for that matter, one is focusing on only one tiny part of thing that simply should not matter, and from that trying to form judgments with regard to the entire world. This is a misguided lifestyle that is lacking in harmony of life. हमारे लाइफ में हम लोग कई बार चीजों को ऐसे देखना शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब अगर कोई एक भी बंदा, सो मोस्टली पीपल आर जनरस इनफ नॉट टू लाफ एट यू। he's saying कि अगर one if stammers and then people are not people are waiting that next word will come out, so it is not that they will start laughing, so it is just the stammerer sometimes who thinks that they will do same for he's combining this with another concept where we find mistakes or other person mistake or our mistake. एक्चुअली That thing is combining. नॉर्मली जब आप, मेरे को जब ये पढ़ रही थी तो मेरे को ये भी दिमाग में आया, व्हेन यू लैक सेल्फ लव,
When you lack confidence in yourself, when you lack the confidence in the people around you, when you feel that, people are not contributing, or you are not contributing to the world, you will feel small at whatever small defects you have in yourself. हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, Yeah. एंड उसकी वजह से अगर आप सोच लो कि मेरे को देख के हर कोई हंसेगा, तो फिर आप जिंदगी में कुछ करोगे कैसे ना? अगर मैं कहती हूँ कि भाई करिश्मा तू बहुत मोटी है, लोग तुझसे हंसेंगे, सो एमएमआई में मैं जब गई थी तो आई यूज टू फील वेरी दिस थिंग कि यार नहीं, मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया, आई डोंट वांट टू गो ऑन द स्टेज, आई डोंट वांट टू डांस. दिस इज व्हाट आई रोट, दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ फॉर मी. Yeah. दैट नाइट मी एंड अर्चना sat, we spoke about it, and then we decided कि नहीं, कल I will go on the stage. Yeah. And once I went on the stage, I was all open. I was like, wow, this is a Mm. beautiful world. अरे This is किसी को कोई मतलब ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो. एवरीबडी इज इन देयर हेड लुकिंग एट देमसेल्व्स ओनली कि मैं सही लग रही हूँ ना. exactly until and unless you keep on thinking about yourself, then people may notice because otherwise they are busy in their own things. Actually. Yeah. So youth says, did you actually convey such a harsh idea to people who suffer from stammering? Philosopher. Of course. At first, there were some adverse reactions. But by the end of 3 days workshop, everyone was in deep agreement with it. Youth. It certainly is a fascinating argument. But focusing on people who suffer from stammering seems like a rather special example. Could you give me any others? Philosopher. Well, another would be the work alcoholic. This too is an example of a person who is clearly lacking in harmony of life. Youth, a work alcoholic is. Why is that? Philosopher. People who suffer from stammering are looking at only a part of things, but judging the whole. With work alcoholics, the focus is solely on one specific aspect of life. That is work. They probably try to justify by saying, it's busy at work, so I don't have enough time to think about my family. But this is a life lie. They are simply trying to avoid their own other responsibilities by using work as an excuse. One ought to concern oneself with everything, from household chores and child rearing to one's friendships and hobbies and so on. Adler does not recognize ways of living in which certain aspects are usually dominant. The other day as well, I was talking about कि लाइफ में हार्मनी वेव्स के जैसे होनी चाहिए. कि अगर मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन माई रिलेशनशिप्स, एंड द अदर थिंग goes down, दैट इज माई जॉब, माई करियर. देयर शुड बी अ थिंग दैट अभी ये डाउन हो रहा है ना, लेट मी फोकस ऑन करियर. करियर विल स्टार्ट गोइंग अप, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर और नीचे चलता रहेगा. ना व्हाट इज आवर जॉब? जिस चीज की उस समय पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उस चीज को आप ठीक करते करते आगे बढ़ते जाओ. इट शुड नॉट बी कि मैं 100% वर्क देख रही हूँ और रिलेशनशिप तो घास में भी चला गया, गड्ढे में भी. Also, we have to form that priorities, na? Like it will not be like if you're focusing on relationship, we'll not have to ask another person. You are saying we only have to judge that what is the needed thing to be done. ऐसे नहीं करना. यू गेट टू नो, यू गेट टू अंडरस्टैंड. Get to know, huh? I was like, maybe I'll have to ask them, or maybe we'll have to discuss that. It can happen, but obviously we can, you're saying we can also judge by ourselves or get to know, yeah. यू सेंस इट, यू सेंस इट. वाई? जब आप अपने करियर में बहुत सारा सारा ऊपर जा रहे हो, ठीक है, हस्बैंड कह रहा है टाइम ही नहीं दे रही, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो अब what will you do? Keep focusing there and let him be there, and he slips down, 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 goes into the hole, rabbit hole में गया वो. Yes. That is not how life happens. While you are going up, you have to keep on checking, are we on the same page, are we on the same page, so that अगर ये rise कर रहे हैं तो ये एक साथ rise करें. You don't want to reach the peak of the mountain alone. True. When your husband is with you, you also want to satisfy your other needs. You want to work on your hobbies, you want to have a financial freedom, you want to have your career, you want to have everything in life. You want to have joy, pleasure, this, that, recreation.
with girls, what happens is we are managing household chores, and then sometime this generation, what happens is when we are newly married or now, the issues which can come, like we feel like, okay, they are earning, then what about my earning? And if I can earn सबसे such, बड़ी प्रॉब्लम आज की जनरेशन में यही है, दे हाँ, थिंक ये तो शी इज जस्ट अ होम मेकर. Just a homemaker is not just a homemaker. exactly. And we don't have to think about income aspects. If one is able to give more, a boy feels like I want to give more, or kind of he's just into that from so many years, because like he is into it. So you don't have to compare the income things and all those things. I feel that only you are saying don't keep on that mera career be or grow career or things, anything. So any thought which is bringing disharmony, or any thought which is bringing hindrance in your thinking pattern, right? I feel many like what we do, we can little bit think about what is the priority at that moment. Yeah. Yes. So youth says, ah, that's exactly the sort of person my father was. It was just be a workaholic, bury yourself in your work and produce results, and then rule over the family on the grounds that you are the breadwinner. He was a feudalic person, philosopher. In a sense, that is the way a living, that is a way of living, of refusing to acknowledge one's life task. Work does not mean having a job at a company. Work in the home, child rearing, contribution to the local society, hobbies, and all manners of other things are works. Companies and such are just one part of that. A way of living that acknowledges only company work is the one that is lacking in the harmony of life. So now when I'm talking about myself, then I'll talk about yeah, this boys thing also, that they are also doing this same mistake. What they're thinking, company work is our life. So they were not involved in any other thing many times. Only rarely we would see them in matlab, bring this all the tasks which are written. They also run away from these things, like many tasks, or how to balance the family. If girl is unhappy, you also have to look after why she is unhappy. If I have to feel, they also can ask us, like same for my brother, same for my father. It can be anyone. I'm not labeling anyone, because they have so much of companies are asking them so much work. It can be that way also, that they also don't know how to balance it. कोमल, एक लड़की होती है ना, उसके अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, उसके अंदर बहुत सारा प्यार भरा होता है. इट्स इज ओनली दैट शी डज नॉट ब्रिंग इट आउट. Hmm. उसके अंदर इतना पोटेंशियल है एक लड़की के अंदर, दैट शी कैन मेक अ होम हेवन. And she Hmm. has the wisdom and she has everything in her. And she has the Yeah. potential to bring riches to rags. But And what do from you say rags about to like riches. boys are not contributing work in the home, child rearing, these lines which are written, hobbies and all manners of other things of work. Workaholic हो रहे मैंने हैं जो. मैंने एक कंसेप्ट बताया था. इफ द मैन इज गिविंग 20, Hmm. women will give 80. There will be days when the woman will be giving 20, the man has to give 80. This is the love that you will have to share with your husband. This is the True. kind of understanding that you have to bring about. That is called a mature love. That is the way you lead a life that is a happier life. अगर सिर्फ जिंदगी बितानी है, तो भाई दोनों अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन में बैठो, एक दूसरे के ऊपर कूड़ो, और एक दूसरे को बोलते रहो तूने मेरे लिए ये नहीं किया, और वो भी बोलता रहे आई तू. थिंक न्यूक्लियर फैमिलीज में यही, और दोनों इवन गर्ल और बॉय दोनों भी जब वर्क करते हैं, not in our system, in another systems also, like I've seen near ones, when both are working, they'll be so frustrated because companies are asking them 12 hours work, 18 hours work, 15 hours work, corporate things. So what is like, who will do the cooking thing, or who will bring the food, right? So basically that, things happen over there come also. on a consensus that चलो अभी हम हायर करते हैं एक कुक. हाँ, Then they what else they can do? They will bring out food from outside. ऑर्डर करेंगे वही खाएंगे. एंड व्हाट डू exactly. दीज कपल डू? कि हमारे को तो इस ऑफिस के चक्कर में बिल्कुल ही टाइम आपस में नहीं मिल रहा है, सो दे विल हाँ, गो ऑन द वेकेशंस. देन दे वांट कि बहुत सारा, मतलब सब, या फिर वो परमानेंट हेल्प,
They would require, they feel like, oh, I want ki juices should also come. Cook will come for 1 or 2 hours, but they want, like, they're not able to move and in front of laptop. So that is, obviously these are side effects of that life, which is office life. Maybe book is not talking about that, but this is not a good concept which offices are giving them so much. Even Infosys and those companies were asking to work, and fun is like people are not liking it. Like you're not giving us family and balanced life. It is not in favor. Indian youth is talking about that topic already, that it should not happen. Why you asking Sundays we working or though? It was there na in news Twitter. There's Narayan Murthy and one another was saying, yeah. Even my brother hears these things, so maybe that is coming up. He would say what we should do. Like it's not about who will cook. Cook is already there, but next things also maybe permanent he wants. कि okay juice भी आ जाए, which parents do lovingly. He comes and parents are happy to serve, but he takes it. That is like a joy and love for him. But see, but he would want it at his house also, na? That who will do that? Exactly. The youth says exactly as you say. And it's not as if the family he's supporting has any say in that matter either. You can't argue with your father when he growls with the violent tone of voice. It's thanks to me that there is food on the table. Philosopher says such a father has probably been able to recognize his own worth only at the level of acts. He works all those hours, bringing in enough money to support a family, and is recognized by the society. And on that basis, he views himself as having a greater worth than the other members in his family. For each and every one of us, however, there comes a time when one can no longer serve as the provider. When one gets older and reaches a retirement age, for example, one may have no choice but to live off one's pension and support from one's children. Even when one is young, injury or poor health can lead to not being able to work any longer. On such occasions, those who can accept themselves only on the level of acts are severely damaged. तो अर्लियर इन द चैप्टर इट वाज आल्सो गिवन कि हमारे को हमारी सेल्फ वर्थ कैसे पता चलती है. तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया हुआ था कि अगर आपकी मदर का एक्सीडेंट हो जाए, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तब भी आप उससे प्यार तो करते हो ना. दैट इज वर्थ. Worth is not that I am bringing home bread and that is why you should be respecting me and this is why I am more worthier than you. Presence of anybody in your life is worthy. And Karishma, somehow I was asking for this type of worth. I don't have to ask, but strangely enough, I don't know from which past life birth it is coming. I was like, even if I'm not cooking, even if I'm cooking, that is very adamant, I would say. But somehow I don't know. But because I was cooking, it was not like I'm not. But if they label, if you are doing this, that, then I was like, Komal has to get love. Very different thing. But I was kind of asking that word. Every human being wants Mm. to be worthy. Mm. Everybody It wants. is not like you are bringing this office thing and matlab something. I don't know how that concept was fits somewhere, but it was something like that, some worth. नहीं, Like बहुत maybe सारी you were फैमिलीज saying. में ये है. इट इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज एट मल्टीपल. मतलब मैं कहूंगी एक हो सकता है 90 to 99% लोगों के घर में यही कंसेप्ट हो कि भाई मैं पैसे लेके आता हूँ, मेरी इज्जत करो, मैं ज्यादा वर्दी हूँ, तू क्या. And moreover, वाइफ हैज टू फील वर्दी herself. It मतलब होता कि हम अपनी वर्थ नहीं फील कर रहे. Exactly. दे When you don't know how to respect yourself, people will never हाँ. know how to respect It you. is not because of them, yeah, that only we learn. It is because we were not able to feel our worth. Because we have also got educated and then we are feeling, oh, what are we doing at home? What should we do? We are not earning. Somehow I was not getting job. So he is earning, he is on calls, and I would think, oh, what to do? Those things can bring triggers. That it's not like if I am sometimes not cooking, so I'm not worthy. Anything like हम भी ये तो करो या सोचे थे ना यार, मैंने ना खाना नहीं बनाया आज तो मेरे को. Hmm. Or yeah, even if we are not thinking, it comes somehow.
So that would bring a trigger point, like how this is coming up, why I have to be this and that. Or maybe somewhere I may have seen that if they are able to have a chef or a cook, even if I'm not working, I also need it. So they will say, "What are you here to do?" I would do. I'm here to support you. It is very, matlab, even if it is You being have to recorded. read the culture of the house. It is हाँ. not for everybody. तो मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, he can have 2 3 4 5 7 cooks. हम्म. हर It is हर about, घर का अपना कल्चर है ना, हर घर का अपना. हाँ. You Yeah, have it is like they can have, but still you are saying that still they would love you to be you to क्यों. make. वैसे सच्ची बात यह है कि कुक तो नहीं हो तो बेटर है. क्यों? क्योंकि जब आप खाना बनाते हो, पाठ करके सिमरन करके बनाते हो, यू आर सेंडिंग एनर्जीज. उनको पता भी नहीं चलता, यू आर सेंडिंग एनर्जीज ऑफ लव, एंड दे विल लव यू एंड रिस्पेक्ट यू बैक. हाँ, मतलब that is a very different spiritual concept, but yeah, you're saying food को हम power दे रहे हैं. In that sense you're saying कि और मेरे को तो बहुत वर्क करता है. मेरे को पता है, मेरी मम्मी के घर में हाउस हेल्प है हु कुक्स एज वेल. एंड हम्म. जिस दिन उसका मुंह बना होता है, आई मेक श्योर दैट आई एम नॉट ईटिंग फूड देयर. Oh God. आई मेक श्योर, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग कि भैया मुंह बना हुआ है, मैं नहीं खाती. How do you know? मतलब हाँ, पता लग जाता है ना normally. Yeah. एंड Right. और मेरी मम्मी को बहुत चिढ़ मचती है जिस दिन मैं खाना नहीं खा के जाती हूँ उनके घर से, क्योंकि शी सेज तूने मुंह बनाया था क्या. वो उसके बेचारी के पीछे पड़ जाती है. आई एम लाइक डोंट टेल एनीथिंग टू हर, आई जस्ट डोंट फील लाइक हैविंग. हाँ. I don't want her to say anything to her, but I keep on, telling her कि आज मेरा मन नहीं है, I don't want to eat, I'll go home बिना खाए. And my हम्म. mom will be like, क्या हुआ था, tell me. She will eat. अगर तू स्माइल करके अच्छे से बोलती तो जरूर खाती. तूने हे क्या शक्ल भगवान. बनाई थी? Because my mom हमने knows क्योंकि वो that पिछला उनको नॉलेज दे दिया ना आपने कि आई डोंट नीड व्हेन इट इज कुक्ड दैट वे. I am very particular and I don't allow anybody to cook chapatis for my husband either. I always make sure, even if I am at my mom's house, I will make chapati. खाना बना दिया ना आपने, thank you. I will make chapati for my husband. Some people would love another thing like अपने hand में मतलब cook is making chapatis, and some people would love तड़का खुद से लगाएंगे. हाँ. सो इट That. इज फॉर एवरीबडी, इट्स समथिंग डिफरेंट. हम्म. अपने घर में तो मैं ही बनाती हूँ, मैं ही सब कुछ, खाना भी मैं ही बनाती Exactly. हूँ, खाना रोटी भी हम्म. मैं ही बनाती हूँ. बट मम्मी के घर में, बिकॉज द मेड इज देयर, वो खाना पहले ही बना देती है. तो देर आर That's why फैमिली you जहाँ saying पे गरम गरम चपाती मिल जाए. एग्जैक्टली That is. देर इज अ पर्टिकुलर वे दैट ही लाइक्स द चपाती, तो व्हाई शुड आई नॉट सर्व हिम दैट. हाँ, that thing. मेरी मम्मी को भी लगता है चल मैं बना देती हूँ. नहीं नहीं नहीं, नीरज की मैं बनाऊंगी, बाकी सबकी जो मर्जी बना. हम्म. Yeah. That is what you always tell about adjusting to things and knowing what they love, knowing what they Do love. what he loves. And थोड़ा सा it takes this much of adjustment. It's not big adjustments. True. You Right. says, you mean those people whose lifestyle is all about work? Philosopher. Yes, people whose lives lack harmony. Youth. In that case, I think I'm starting to get what you mean by the level of being which you brought up in last time. And I certainly haven't given much thought to the fact that someday I won't be able to work any longer or do anything on the level of acts. Philosopher. Does one accept oneself on the levels of act or on the level of being? This is truly a question that relates to the courage to be happy. That's the end of the chapter. And And the last lines, talk about कि भाई हमारे को कोशिश करनी है कि we should feel ourselves to be worthy as a human being, as our own existence. Because आप जब exist कर रहे हो, there is some purpose somewhere that is being solved. it is all about our confidence. It's all about our worth, actually. Absolutely. When girl is not working, you will see many girls who are not working. Still, there would be issues in marriage, relationship concepts. It is not about working or not working. Even if someone who is not working, they also may feel worthy enough that they can hire so many cooks and still be happy, and husband तो will be जो लेडी काम compliant. करने जा रही है, she feels I'm unworthy because I'm not giving enough time to my kids and my husband. Hmm. The If she's not able girl to who is feed sitting at enough home, worth.
तो वो घर पे करके भी फिर भी सुन रहे होते हैं कहीं पर, मतलब वी आर ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज कंसेप्ट, मुझे एकदम हो जाता है कि वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन देयर लाइफ बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग, ऑब्वियसली वी दे हैव देयर ओन पैटर्न्स। ये नहीं है कि सब फोल्ड होता है मेनी थिंग्स, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी द थिंग्स समहाउ समटाइम्स। चलो भाई अर्चना, लेट्स लिसन, लेट्स hear you because you have all a new way of understanding things. तो यस। let's hear it from you. मुझे पता है कि there are so many things that I am very soft at handling things. Archana has आज तो साइलेंट थे अर्चना, शी वाज जस्ट was लिसनिंग। having food ना, तो I didn't want to disturb. हाँ, मैं सुन रही थी। प्यारी प्यारी बातें, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव सुन रही थी। यू आर ऑब्जर्वर, यू गेट सो मच ऑफ फन। मैं बचपन में ना बहुत ऑब्जर्विंग वाली नेचर की थी, एंड आई वाज लाइक क्वाइट, टोटली क्वाइट, जब अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हो। इट वाज क्वाइट एंड मतलब सब देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, दुनिया को देख रही थी, मतलब जस्ट ऐसा बहुत टाइम। हाँ। चलो अर्चना, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आज मैंने बहुत बोला है। हाँ, अच्छा बोला है। तो ऐसे ज्यादा कुछ नहीं, बट यस, हाउ अबाउट करिश्मा ने बड़े सारे ब्रेक थ्रूज दिए हैं, अपना पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा रखा है कि हाउ टू एडजस्ट इन द फैमिली। So, yes, one should try to adjust as much as possible. And आपको बाकी ये है कि according to your time, according to your priorities, according to your what you want to become, sometimes you have to make little changes. You have to see that are these changes are, how much they are acceptable in your family or how you can make it acceptable. So हम्म। nothing turns How मे to भी लग overnight. make रहा it है हम लव देने को acceptable. तैयार हैं। हो सकता है हम लव देने को तैयार हैं, क्या दूसरा पर्सन लेने को तैयार है? हाँ, देखो, आ लव था का डेफिनेशन भी ना लास्ट लाइंस चेंज में आ रहा था होता कि है। पर ना हम पैम्पर कर रहे हैं और हम कुछ लविंग में कर रहे हैं, मे बी ही इज लाइक नो, नो, मतलब दे कैन बी लाइक किड्स, है ना, वी डोंट नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मुझे नहीं पता कहाँ से ये दिमाग में आ रहा था, बट इट कैन बी लाइक आई एम ट्राइंग, ओके चलो होली खेले, Not everybody लेट, wants a physical touch, no? Everybody has their हाँ फिर, language of love. Actually, love हाँ language देन आई can हैव be टू फाइंड different आउट for व्हाट different इज people. मतलब लैंग्वेज ऑफ लव, मे बी पास्ट, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सो मेनी थिंग्स बहुत सारी रिपीट हुई। जाना है इतने पास में कोमल, हमने क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं? Why not start from now? ठीक है, हुआ बट होगा कुछ। बट आज समझ, मुझे आज मुझे ये जरूर दिखा था कि सारे पैटर्न्स पीछे से आ रहे थे, बाद में हाँ, दिखा था। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आई अग्री, बट हाउ अबाउट थिंकिंग अबाउट आज से लविंग, हाँ। आगे कैसे ठीक हो सकता है? आपकी इतने बातों से तो बस यही दिख रहा था कि हाउ कैन यू क्रिएट लव। लव वाज मतलब मतलब मेरे अंदर लव वर्ड ही फॉर्म हो रहा था। इट वाज लाइक द वे यू सेड कि फीमेल कैन ट्राई feminine एनर्जी थिंग लाइक केयर नर्चर लव, that is supreme, obviously, our can be efforts, right? And yeah, more and more it's like efforts thing. देखो भाई, मैं Actually, कहती हूँ जब आप प्यार से करोगे इट विल नॉट बी एन एफर्ट फॉर यू। इट हाँ, प्यार इज नेवर अबाउट कि मैं कर रही हूँ ये वापस देगा। प्यार इज ऑल obviously। अबाउट गिविंग ओनली। हाँ, यहाँ पे डोंट नॉट गेट योर एक्सपेक्ट। ट्रिगर्स एंड हर्ट, ये बड़ा डिफिकल्ट है कि अपने मैम भी क्या कहते हैं अभी थोड़ा सा तू कर ले, और मैं कहती हूँ मेरा इनर चाइल्ड, अभी ये गेम भी चल रहा है, व्हाट हैपेंस इज ही इज ट्राइंग कि अभी चांसेस मिले हुए हैं, वर्क ऑन दैट चैप्टर, राइट? मैम कहती है अभी ना उसका मतलब थोड़ा प्लीज हेल्प हिम आउट, जैसे समथिंग, है ना, जो भी वो बहुत उसका परसेप्शन दिखाया जा रहा है साइकोलॉजिस्ट की तरह, एंड आई एम लाइक व्हाट, ये क्या कि ब्रदर को थप्पड़ लगा देती मैं होती, मैम इज लाइक डिफरेंट वेज, है ना, प्रॉपर, कि नो नो सी हिज पॉइंट, मैम कहती यही वे है, मतलब शी इज जस्ट ट्राइंग कि इधर से मैं उसको उधर वाला पर्सपेक्टिव दिखाऊं। माँ को ना ऐसे फील हुआ होगा, माँ को ना ये लगा होगा, माँ और बॉय, एंड कोमल इज लाइक मेरा इनर चाइल्ड का पेन कब दूर होगा, मतलब। व्हाट अबाउट इफ अगर अगर ये समझो कि कोमल, अगर कोई इनर चाइल्ड कोई चीज ही नहीं होती, क्या पता सिर्फ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ही होता है। ओके ये तो देन हम माय लोगों ने सबकॉन्शियस इज सोचते गेटिंग हैं हर्ट ना। कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। अगर हमारे को पता ही नहीं होता, रैंडम लोग होते, रैंडम लोगों को ये बात कर रहे होते, पता है तुम्हारे को पता है मेरा इनर चाइल्ड ना हील्ड नहीं है, मेरा इनर फिर चाइल्ड भी ना आंसर दे सकते हो ना, फिर तो डायरेक्ट ही गुस्सा लग रहा होता है, मैम नहीं ना उसने ऐसे क्यों किया था, फिर ऐसे आ रहा होता है हाँ, तो कि उसके बाद उसका रिजल्ट ढूंढना आसान है कि अपने इनर चाइल्ड को पूछना। और हाय नहीं, मेरा इनर चाइल्ड बेचारा क्या करेगा, मैं क्या करूं? अगर उसमें पड़े रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉर्ट। देखो वो प्रोसेस है विच नीड्स टू बी हील्ड, पीछे बैकग्राउंड में।
but in front you have to start acting from today as a righteous एल्डर person. हाँ वही मैं आपको बोलती हूँ बिल्कुल, छोटे I agree with Karishma, Komal. See, whatever healings you are taking, it is for your own self. आप रिश्ते सुधारने के लिए हीलिंग्स नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को ठीक करने के लिए हीलिंग्स ले रहे हो, ना ही उसको फिक्स करने के लिए. सी, दिस क्लैरिटी शुड बी देयर इन योर माइंड दैट यू आर नॉट हेयर टू फिक्स हिम, यू आर हेयर टू बिल्ड योर सेल्फ. आप अपने आप को इसलिए बिल्ड कर रहे हो कि मैं वहां जाके उस चीज के लिए सरवाइव कर सकूं, राइट? अब वहां क्या जरूरत है उसके लिए तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा भैया कि वहां किसी को कुछ नहीं पता. What you are going through, what is your inner child saying? They don't know the concept of inner child. What is inner मतलब वो child? कब हर्ट हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना कि जब मैम उसका पर्सपेक्टिव रखते हैं ना मेरे आगे। आप मेरी बात सुनो, वो आपको तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं. देखा जाए तो ये सब चीजों को आप इतना, मतलब आप जैसे वो कह रही है ना करिश्मा की, उधेड़ बुन में मत पड़ो. अब आप क्या कर रहे हो कि वो पिछले बुने हुए स्वेटर्स को उधेड़े जा रहे हो, गोले बनाए जा रहे हो, फिर नए स्वेटर बुने जा और रहे हो, मुझे फिर ना उधेड़े जा रहे हो. एग्जैक्टली टॉपिक याद नहीं है, बट इट वाज लाइक उनका पॉइंट रख रहे थे तो मुझे गुस्सा आ रहा था ज्यादा। मैम कह रही ओके फिर सेपरेट कर दूं। मैम वाज एकदम से कि अच्छा फिर चलो बताओ ऐसे कर देते हैं फिर, और तुम ऐसे। मैं आई वाज क्वाइट देन कि मैम कह रही यही प्रोसेस है, ऐसे ही करूंगी मैं तो। मतलब इट वाज दैट। और मैम डेली हार्श हो रहे, हार्श शी वाज। फोन करके बोल रही है फिर कि मैं हार्श हो रही हूँ। मतलब वो प्रॉपर कि नहीं नहीं तू साइकिल पे चली जाती, तू कार नहीं आती थी तो ऐसे चली जाती, तूने उसको दिखाया क्यों नहीं कि मैं आ रही हूँ तेरे लिए, तूने उसको पेन क्यों दी है, तू अपने अहंकार में क्यों थी। दीज वर द पॉइंट शी वाज कीपिंग, यू केप्ट हिम इन तो पेन। देखो, हर माँ ना अपने बच्चे को सुधारता है, औरों की गिल्ट हाँ कोई नहीं देखता. एग्जैक्टली। नो मैं मदर गोस एंड टेल्स पड़ोसी का बच्चा कि भाई तूने वही, मेरी बेटी को क्यों पटाया, ब्लड हाँ कुछ घर करते में हैं वो पकड़ गलत हो मार जाता है। मारती है. वही मैम बोल रही है कि हमारे पास अभी वो नहीं है, मैं उसको पकड़ नहीं सकती। मैं तेरे को ही बोलूंगी ना कि तुम मेरे पास हो तो हम इसी पे वर्क कर सकते हैं। वो भी तुम बोल रही हो कि जो साथ में है मैम उस पे अगर वो आएगा, इफ ही इज विलिंग आई विल हेल्प हिम, कि हाँ फिर मैं कोमल का भी बता पाऊंगी। बट अभी तो मेरे पास कोमल ही है, तो मैं कोमल को पकड़ के ही समझाऊंगी कि तुम भी नहीं कोमल गई का थी। ही हार्ट को सॉफ्ट बनाना है ना कि भाई हाँ कोमल तू छोड़, वो तेरी समझ रहा नहीं समझ रहा वो कोमल. पेन दिखा रही होती है कि अगर स्टेटस डालें तो तुझे क्यों प्रॉब्लम है, कि उनका पेन का वे है, वो पेन एक्सप्रेस कर रहे हैं। वाई यू गेटिंग हर्ट इन दिस स्टेटस। मैम का यही था, बता तेरे को आज क्या ट्रिगर हुआ। मैंने कहा ये ट्रिगर हुआ, तो मैम कहते अच्छा पेन वो कहाँ दिखाएगा, उसको स्टेटस से दिखानी है कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे पंगा हो रहा है, मेरे को मे प्रॉब्लम बी हो रही है। मे बी ही सीइंग दैट यू आर वाचिंग हिज वो स्टेटस, और इसलिए वो कह रहा है चल ऑब्वियसली वो देखो तो क्या. नाम तो आ ही जाता है कि कोमल देखती है. तो डोंट गो हाँ वॉच, क्यों चेक कर रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो. स्पेस. भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुमको वापस जाना है तो मैंने तुमको एक चीज बोला था कि तुम 2 दिन के लिए दोनों जने बाहर जाओ अकेले. तो लेट इट बी हाउ अबाउट यू हाउ बोथ. टू हाउ टू आस्क हिम ना, ही डजंट मेक कॉल्स। मैसेज लिख दो. तो मैसेज पढ़ के इग्नोर जा रहे हैं, 2 साल हो गए। तो मैसेज फिर का तो माइंड, फिर रिश्ता ही नहीं है इसका मतलब. हाँ उसका माइंड इतना स्ट्रांग अभी नहीं वो वाला है ना। अब फिर भी हम तो फिर आप किस वाले रिश्ते के लिए, फिर तो यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट मतलब वही मैम को sabotaging बस ये yourself. पता है ना कि दिस लड़की वांट्स इट तो लेट्स ट्राई इट, पर ऐसा चल रहा है काइंड तो ऑफ। हाउ लॉन्ग यू वांट ना, आप तो अपनी जिंदगी निकाले जा रहे हो ना. अब वो आपने एकदम जैसे देख लिया कि फिर मैं उसकी साइड लेती हूँ, नहीं नहीं शायद प्यार हो, यहाँ गड़बड़ हो रही है कि यू आर जस्ट फॉल्सिफाइंग योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू. कुछ तो। अगर वो आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, या आपको मैसेजेस रिप्लाई नहीं बैक पढ़ नहीं रहे। कर रहा, या आपके फोन नहीं उठाता, तो हाँ देयर इज नो रिश्ता. व्हाट यू आर एंड फोन रन. क्यों नहीं उठा रहा, आई टेल यू फोन क्यों नहीं उठा रहा। ही सेज, मैंने अभी करिश्मा को बताया, ही सेज कि कुछ बात ऐसी हुई थी फैमिली की तरफ से जो उसको हर्ट हो गई एंड ही इज इन डिप्रेशन। वो उसका पॉइंट है। अरे ये सब बुलशिट बातें हैं. देखो, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने ये सारा तमाशा देख विल टॉक रखा है इट अपनी आउट देन, जिंदगी विल टॉक इट में. आउट आई एम सेपरेटली। टेलिंग यू, मैंने ये सब सारे सारे सेपरेटली तमाशे मतलब देख रखे. यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मैम मुझे क्या दिखा रही, वो वेट कर रहा था ना, देख वो तेरे लिए डिवोर्स नहीं दिया, वो 2 इयर्स आपके लिए वेट कर रहा है, वो लव है। मैम ने मुझे बोला ये भी लव है, ग्रेटिट्यूड करो कि ये भी लव है कि वो वेट कर हाँ रहे हैं। है लव, उसने नहीं दिया डिवोर्स, लेकिन नाउ व्हाट. नाउ he's willing to meet this Saturday also. Every Saturday he's putting efforts कि मीटिंग तो वो कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव थिंग्स है कि पहले भी वो मान गया कि ये लड़की गलत नहीं थी, फैमिली का मुझे हर्ट हुआ है। इशू इज तो मैंने मैम ने कहा, मैं चुप रही, ठीक है अच्छा है कि मेरे पे नहीं है कि मैं अब ये। तुमको एक बात बताऊं, ये सब बेकार की बातें हैं. तुम लोग ना बहुत
बहुत अजीब सी गेम खेल रहा हूँ, मैं बता रही हूँ। इसका इस लूप में मैं पड़ चुकी हूँ, इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड। वो कहेगा तू तू गलत थी, तू कहेगी वो एंड गलत करिश्मा, था, फिर वो कहेगी कि ऑब्वियसली वी आर नॉट शेयरिंग दिस और वील हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। होता क्या है? रुको रुको, हाँ नहीं, let us connect tomorrow. Let me close this recording. Tomorrow we will be talking about you can be happy now. ठीक है? And if you want to be happy now, Yeah. I would love for each one of you to join in tomorrow's session. God bless you. Have a good night.